Hello dear students, welcome back to my channel. Today we will be discussing the topic of dictionary based representation of vectors of linear algebra from SY BSc Computer Science papers. Let's move on, and at my channel you are going to get the understanding as well as how to do the Python implementation as well. So let's check out what is dictionary based representation. So when I talk about dictionary based representation, I have taught you about how vectors are function and how vectors can be written as functions. So at that time we had made use of dictionary for representing the vectors. Okay, now what we will be doing, we will be having a vector class. We'll be creating a class in Python. Okay, so we will be using it, and we are going to include two fields. पर ध्यान से सुनना, ठीक है। टू fields हम include करेंगे। एक होगा डोमेन और एक होगा फंक्शन। एक होगा डोमेन और एक होगा फंक्शन। जो डोमेन होगा वो सेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जो फंक्शन होगा वो एक डिक्शनरी बोलकर रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। इतना समझा? इट विल बी अ सेट एंड दिस विल बी अ डिक्शनरी. So that is what is a dictionary based representation of vectors, that we are going to create vector class that are going to have two fields, the domain and the function. डोमेन जो है वो हम सेट लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं और जो फंक्शन है वो हम डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ वेक्टर क्लास, डोमेन एंड फंक्शन. नाउ वी विल बी चेकिंग आउट what we are going to see. So we'll be seeing how Python class vector is written, what is setter and getter method, स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो हम स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे और वेक्टर नेगेशन कैसे करेंगे. सो विल बी सीइंग द पाइथन कोड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैम. द रेफरेंस बुक दैट आई एम यूजिंग इज कोडिंग द मैट्रिक्स थ्रू applications to computer science. The main reference book that is there, I'm using that. I have defined the class vector and written the init function having the attributes label and functions. This init function will help you for initialization of objects with the attributes and all. So I have written labels and functions. So self.d equal labels and self.f equal functions. Now I create an object that is v with vec class and I give my domain and my function. You know that domain is going to be a set and function part is going to be a dictionary. Okay, so my domain D, capital D. Okay, my domain D consists of ABC and the function part, that is F, small f, D and F, right? Small f, that is my function part, it has a dictionary where A is set to value 1. ठीक है, इतना क्लियर है. इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको अगर इसका वैल्यू चाहिए तो हम कैसे रिटर्न करते हैं. सी, for d in v dot d, this is your small v, that is your object. And when I say v dot d means it is your domain. When I say v dot f means it is your function part that is being accessed. Okay, so for d is any small d is any element. Okay, so for d in v dot d, अगर वो element domain में है, for d in v dot d मतलब अगर वो element domain में है आपके, if d in v dot f and if that d element is there in your function part also, then you print the value of that particular element. Okay, so for each of the elements in my domain it is going to be checked. Okay, it's a for loop, right? So हर एक के लिए वो check करेगा. So पहले वो a के लिए check करता है. So if a is there in v dot d, yes. if d is there in v dot f, yes, a is there ना, यहाँ पे a है, तो क्या प्रिंट करो, वो एलिमेंट का फंक्शन का वैल्यू प्रिंट करो. सो v dot f dot d will be returning the value as 1. you see the output here as 1. फिर b के लिए चेक करेगा ना, वो हर एक एलिमेंट के साथ चेक करना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट लेता है b. तो b क्या डोमेन में है, yes, बट क्या b फंक्शंस पार्ट में है, नहीं है, तो वो प्रिंट विंट कुछ नहीं करने वाला. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि एलिमेंट डोमेन में है क्या, फिर वही एलिमेंट क्या फंक्शन में है, और अगर है तो उसका वैल्यू प्रिंट करो, दैट इज v डॉट f ऑफ d. ओके,
नाउ हाउ डू आई सेट द वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक 1 था राइट, अभी b का वैल्यू सेट करना है तो कैसे करें, तो इसके लिए हम एक सेट आइटम फंक्शन लिखते हैं. तो def सेट आइटम, देयर आई गिव व्हाट v, माय एलिमेंट जो कि है हमारा स्मॉल d, जो एलिमेंट हमको देना है सेट में, और क्या वैल्यू आपको सेट करना है. तो इससे क्या होगा, v डॉट f डॉट d, sorry, v dot f of d would be set to val. Okay, and I call the set function like this way: set item v, comma, the element is what b, and what value I want to set for that, I want to set the value 2. तो इससे क्या होगा, b का वैल्यू 2 सेट हो जाएगा ये फंक्शन से. तो अभी चलो हमने रन किया तो वो सेट हो गया, बट हमको कैसे पता चलेगा, तो हम वही वाला फॉर लूप वाला पार्ट वापस से लिखते हैं. सो योर वी गेट फॉर d डॉट v डॉट, सॉरी फॉर, so here we get for d in v dot d, for d in v dot f, print the values. So उसे वो a भी मिल रहा है तो वो a का वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है 1. उसे अभी b भी मिल रहा है जिसका वैल्यू ये वाले पार्ट में आ गया है, मतलब कॉमा b कोलन 2 हो चुका है, इसके लिए वो b का वैल्यू भी अभी रिटर्न करता है 2. तो ऐसे आप c का भी सेट कर सकते हो. ओके, नाउ द गेट अ फंक्शन, हाउ डू आई गेट द वैल्यू ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट. यहाँ पे देखा ना, हमने सब रन करना पड़ रहा है, और अगर मुझे स्पेसिफिक आइटम का वैल्यू चाहिए तो इसके लिए मैं फंक्शन लिखती हूँ df गेट आइटम. आई विल हैव टू पास माई वेक्टर v, एंड कौन सा एलिमेंट का मुझको वैल्यू चाहिए, दैट इज माई d. सो रिटर्न क्या करो, रिटर्न करो उसका वैल्यू. वैल्यू कैसे मिलेगा, v डॉट एफ ऑफ d, मतलब वो एलिमेंट अगर फंक्शंस में है तो उसका वैल्यू रिटर्न होगा v डॉट एफ ऑफ d. इफ दैट d इज देयर इन v ऑफ f, v डॉट f, इफ दैट d इज देयर इन v डॉट f, मतलब अगर वो फंक्शन में है वो एलिमेंट तो उसका वैल्यू रिटर्न करो, अदरवाइज 0 रिटर्न करो. तो वो पहले चेक करेगा एलिमेंट हमारे फंक्शन पार्ट्स में है क्या, और अगर है तो उसकी क्या वैल्यू है, की कोलन वैल्यू है ना, डिक्शनरी है. सो वो वैल्यू देखेगा और फिर वो वैल्यू रिटर्न करेगा. सो हमने कॉल किया है गेट आइटम v, कॉमा में एलिमेंट पास कर रही हूँ b. तो वो देखेगा कि v डॉट एफ में b है क्या, येस इट इज़ देयर, क्योंकि हमने b को सेट कर दिया ना अभी, तो b उसे मिल जाएगा. तो एलिमेंट अगर मिल रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो रिटर्न कर देगा वैल्यू 2, और अगर नहीं होता तो वो रिटर्न करता था 0. समझा. तो इस तरीके से आप गेट आइटम वैल्यू, गेट आइटम फंक्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो. स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है तो जिसके लिए हमने एक वेक्टर ले लिया है और एक अल्फ़ा लिया जो कि हमारा स्केलर है. ठीक है, अब इसने रिटर्न करना चाहिए हमको वेक्टर क्लास ही, पर डोमेन सारे वही रहेंगे जो पहले थे, सिर्फ वो जो डिक्शनरी वाला पार्ट है, फंक्शंस वाला पार्ट, वो चेंज होगा. वो क्या चेंज होगा कि उसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट में अल्फ़ा मल्टीप्लाई करना है. वो हर एक एलिमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, गेट आइटम फंक्शन से मिलेगा. और वो हर एक एलिमेंट कहाँ से मिलेगा आपको, आपको आपके डोमेन से मिलेगा v डॉट एफ, v डॉट डी. सो v डॉट डी से हर एक एलिमेंट लो, वो हर एक एलिमेंट का वैल्यू लो विद द हेल्प ऑफ गेट आइटम फंक्शन, और वो हर एक वैल्यू को आप अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करके सेट कर दो. ठीक है, सो हमने लिखा sm फंक्शन, हमने पास कर दिया हमारा वेक्टर, और अल्फ़ा जो स्केलर है वो हमने 2 ले लिया है. डॉट एफ हम लोग लिख रहे हैं ताकि दोज थिंग्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन अवर फंक्शन पार्ट. सो आई राइट sm ऑफ v कॉमा 2 डॉट एफ. अभी आप देखोगे तो यहाँ पे a2 था, b2 सेट हो गया था, c0 था, सॉरी. अब अगर आप अभी देखोगे तो a1 था, b2 था और c कुछ था ही नहीं, राइट, 0 था. सो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 सेट हो गया है, और c अभी भी 0 है. सो इससे हमने क्या किया, वेक्टर के जो सारे एलिमेंट्स थे उसमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू द एडिशन पार्ट. ओके, सो हियर आई गो विद द एडिशन पार्ट. आई विल हैव टू राइट अ फंक्शन ऐड u कॉमा v. ठीक है, हमको v पता है हमने कैसे लिखा है, उस तरीके से आपको u भी लिखना है, उसी तरीके से आपको u भी लिखना पड़ेगा. ओके, और ये रिटर्न क्या करेगा, u डॉट डी. देखो u डॉट डी क्या है, u वेक्टर का डोमेन, और u वेक्टर का डोमेन हमने किसको सेम रखा है, v डॉट डी रखा है. v डॉट डी क्या है हमारा, a b c, और u वेक्टर का जो डोमेन है वो भी मैं क्या सेट कर रही हूँ, a b c ही सेट कर रही हूँ, कुछ अलग नहीं ले रही हूँ. समझा. अगर आपको यहाँ पे वापस चाहिए तो आप एक सेट के अंदर a b c लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, जो मेरा v का डोमेन है, v वेक्टर का जो भी डोमेन पार्ट है, वही मैं u का डोमेन भी सेट कर रही हूँ. ठीक है,
सो ये वेक्टर ने क्या रिटर्न करना चाहिए, u डॉट डी यानी कि डोमेन, और यहाँ से क्या होगा, एडिशन होना चाहिए ना यहाँ पे तो सारा. सो it will get the item from u, it will get the item from v, corresponding item, and those would be added. और ये किसके लिए होगा, हर एक एलिमेंट जो u के डोमेन में है उसके लिए वो आइटम लेगा u से भी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेगा v से भी, और ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए होते रहेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप है, और फिर वो आंसर रिटर्न करेगा. ठीक है, तो u वेक्टर जो है वो मैंने क्या दे दिया है, v डॉट डी, मतलब कि a b c आ गया है यहाँ पे, और a का वैल्यू इधर मैंने u में 2 सेट किया है और c का 5. देखो आप रिमेंबर करो, a का वैल्यू v में क्या था 1, b का वैल्यू क्या था 2, c का वैल्यू क्या था 0. ये अल्टीमेट वाला नहीं है, ये अल्टीमेट नहीं है, हमारा ओरिजिनल वाला क्या है, a1 b2 एंड c इज 0. सो 1 + 2 कितना हो जाएगा, c 3. 2 प्लस यहाँ पे b नहीं है ना, 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, और वहाँ पे c नहीं था तो c नहीं था यानी कि 0 + 5 हो गया 5. समझा, तो आपका ओरिजिनल u जो है वो था a1 b0, सॉरी जो आपका ओरिजिनल a था वो था a1 b2 और c0, तो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए. क्या आपने फंक्शन कॉलिंग किया, ऐड u, v डॉट f. ठीक है, आपने u और v वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया है. सो आपको ये आंसर आ रहा है. अभी नेगेशन देखते हैं. नेगेशन के लिए मैंने क्या किया है, सिंपल है, आप और तरीके से भी फंक्शन को लिख सकते हो, बट मैं स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही ले रही हूँ जिसमें मैं वेक्टर v लूँगी और मैं बस -1 कर दूँगी तो वो नेगेट हो जाता है. सो आई राइट नेगेशन ऑफ v डॉट एफ, बिकॉज ये फंक्शंस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, हमारा फंक्शन पार्ट में सब चेंज होता है. देखो डोमेन तो सेम ही है ना a b c, बट यहाँ पे फंक्शन में हम अपडेट कर रहे हैं. सो नेगेशन ऑफ v डॉट एफ. सो 1 था तो 1 × -1 -1, 2 था 2 × -1 इज -2, एंड c था तो 0 × -1 रिमेन 0. तो इस तरीके से आपने क्या किया, नेगेशन किया. थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो. सो दैट वाज ऑल अबाउट डिक्शनरी बेस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स. Thank you for watching the video. Please click on the like button, share it with your friends, and do subscribe my channel if you haven't yet. Till then, take care. Bye. See you in the next video.